Singh, your computer science teacher, and today we came here with our new topic, that is the chapter name is working with functions, in which we are going to include how to predict the output of a Python code. Actually, this kind of questions frequently asked in examination, and these are the very important questions for the examination point of view. Let's start our topic. A piece of code is given, एक कोड आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, and we have to predict the output of this code. We have to trace all the lines given in this piece of code, and then we have to find out the output or what kind of output will be produced on the IDE. Clear? Check करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. 9 lines of codes are given in this example. Clear? Now the defining of the function. The function name is power, and two parameters b and p are passed in this defining of power function. Now the multiplication of power is used. Y is equal to b double star p, b raised to power p, written y. Now new defining of a function. The function name is calc square, in which x is a parameter, a is equal to power x comma 2, then return name, n is equal to 5, declaration of new variable. Result, new variable in which calc square n plus power 3 to 3 comma 3. यहाँ पर पावर फंक्शन को फिर से कॉल किया गया है, जिसमें 3 comma 3 का आर्गुमेंट पास किया गया है, और यहाँ पर calc स्क्वायर फंक्शन को कॉल किया गया है, जिसमें n जो है एज अ पैरामीटर आपका पास किया गया. नाउ प्रिंट द रिजल्ट. अब हमें क्या करना है, डिफाइनिंग ऑफ पावर b कॉमा p, यहाँ से हम आएंगे बॉडी पार्ट होगा आपका पावर फंक्शन का. इसके बाद हम आते हैं डिफाइनिंग ऑफ कैल्क स्क्वायर, जहाँ पर x एज अ पैरामीटर हमारा पास हुआ है. a इज इक्वल टू a का हमारा वेरिएबल है, जिसमें पावर फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं x 2 एज अ पैरामीटर यहाँ पर स्टोर एंड देन रिटर्न a. कंप्यूटेशन तो कुछ होगा नहीं, यहाँ पर 2 इंटीजर वैल्यू है और x जो है हमारा दैट इज अ वेरिएबल. n इज इक्वल टू 5 कैल्क स्क्वायर फंक्शन हमारा फिर से यहाँ पर कैल्क स्क्वायर कॉल हो रहा है, और डिफाइनिंग में कैल्क स्क्वायर हमने यहाँ से दिया, जिसमें हमने एक वेरिएबल n दिया हुआ है एज एन आर्गुमेंट पास किया हुआ. क्लियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 5. क्लियर? n की वैल्यू यहाँ पर 5 है, n आपका यहाँ पर आ जाएगा 5, फंक्शन कॉल हो रहा है n इज इक्वल टू 5. n is equal to 5 will be passed as an argument to the calc square. यहाँ पर n is equal to 5 जो है as an argument पास होगा. calc square फंक्शन यहाँ फिर से कॉल हो रहा है, n है, n is equal to 5 यहाँ आएगा, फंक्शन कॉल हो रहा है, तो as an argument आपका कहाँ पास होगा, in place of x. That's why the value of x will become is equal to 5. यहाँ से x की वैल्यू आपका कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी. क्लियर? x is equal to 5 आपका यहाँ पर पास होगा. Now you will get 5 comma 2. पावर फंक्शन यहाँ पर है, पावर फंक्शन यहाँ पर कॉल हुआ है, जबकि स्टार्टिंग में ही हमने जो डिफाइन किया था दैट फंक्शन इज पावर. तो यहाँ पर 5 comma 2 as an argument will be passed in place of b comma p. Now what is the value of b comma p? The value of b comma p will be 5 comma 2. Again b double star 5 means 5 double star 2, double star means power operator, 5 square, and you will get 25. Clear? Again power 3 comma 3. आर्गुमेंट्स की वैल्यूज क्या है यहाँ पर, 3 comma 3. पावर फंक्शन कहीं पर हमने डिफाइन किया है, यस, यहाँ पर हमारा पावर फंक्शन है. 3 comma 3 हमारा एज एन आर्गुमेंट पास होगा किसके प्लेस पर, b comma p के प्लेस पर.
Now written y, you will get the value of y is equal to 27. The value of power 3 comma 3 will be 27. Now result is equal to the value of calc square n is equal to 25 and the value of power 3 comma 3 is equal to 27. Print result, you will get 25 plus 27 is equal to 52. Your output will be exactly equal to 2052. Clear? One more example is given on the board. Defining of the function takes place def add em x comma y comma z. Three parameters are there. Print x plus y plus z. Define new variable, new function product x comma y comma z. Return x star y star z. A एक वेरिएबल लिया है इन विच वी आर स्टोरिंग एड, वी आर कॉलिंग एड em, फंक्शन कॉल हो रहा है 6, 16, 26. These are the parameters. B is equal to product 2, 3, 6. Print A, B. दोनों वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू क्या कराया जा रहा है, आपका प्रिंट कराया जा रहा है. क्लियर? नाउ वी हैव टू प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस कोड. डन. सबसे पहले अगर हम देखते हैं डिफाइनिंग एड em x comma y comma z, प्रिंट x plus y plus z. नो आर्गुमेंट्स आर बीइंग पास्ड. तो हमें पहले चेक करना है कि आर्गुमेंट्स कहाँ से मिल सकते हैं सो दैट द कंप्यूटेशन विल टेक प्लेस. कंप्यूटेशन कैसे होगा ये हमें फिर उसके बाद समझ में आएगा. a इज इक्वल टू एड em, फंक्शन कॉल हो रहा है इन विच 6, 16, 26. These parameters will be passed as an argument to x, y, z. यहाँ से 6, 16, 26 as an argument आपका in place of x, y, z पर पास होगा. Clear? That's why the value of x will be equal to 6, the value of y is equal to 16 and the value of z is equal to 26. Now print x plus y plus z. What will be the output? Actually this is an example of a function without no return statement. That's why no computation will take place, but no product will be produced on the IDLE. Function with no return statement. That's why the output of the first function call, this will be equal to none. ये पहले डिस्कस किया है हम लोगों ने कि अगर फंक्शन विद नो रिटर्न स्टेटमेंट है देन यू विल गेट नो आउटपुट, मीन्स अ वॉइड फंक्शन इज देयर एंड यू विल गेट आउटपुट एज अ नन. क्लियर? सेकंड पर आते हैं b इज इक्वल टू प्रोडक्ट 2, 3, 6. यहाँ से b इज इक्वल टू प्रोडक्ट 2, 3, 6. दीज आर द पैरामीटर्स विच विल बी पास्ड इन फंक्शन कॉल. प्रोडक्ट फंक्शन कॉल होगा आपका 2, 3, 6. ये x, y और z के प्लेस पर आपका पास हो जाएगा. तो यहाँ से जो भी वैल्यू जाएगी x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 6. नाउ रिटर्न x स्टार y स्टार z. रिटर्न स्टेटमेंट इज देयर. फंक्शन विद रिटर्न स्टेटमेंट. कंप्यूटेशन विल टेक प्लेस प्लस रिटर्न विल प्रोड्यूस द आउटपुट ऑन द IDLE ड्यू टू प्रिंट b स्टेटमेंट. यहाँ पर कंप्यूटेशन होगा 2, 3 जा 6, 6, 6 जा 36 एंड ड्यू टू प्रिंट b यू विल गेट एन आउटपुट ऑन द IDLE. आउटपुट आपका IDLE पर प्रोड्यूस होगा. क्या आउटपुट होगा? 36. क्लियर? सो दैट द कंप्लीट आउटपुट विल बी नन ड्यू टू नो रिटर्न स्टेटमेंट एंड 36 ड्यू टू रिटर्न स्टेटमेंट एंड प्रिंट b. Clear? We are going to include some more examples so that we can easily identify the output of the codes, and you have to practice at home. You have to solve or trace the code according to the given set of rules. Then you have to predict the output of the codes. We are including some more examples so that we can easily understand how to predict the output of the codes. Clear?
Again I am taking an example. A is equal to 10. Example number 3. Define call. Call is the name of a function. Global A is equal to 15, B is equal to 20, print A, call empty function. Clear? In this question, actually we have to predict the output. A is equal to 10, a variable A is given in which 10 is assigned. Definition of the function, function name is call, no parameters assigned in this case. Global A is equal to 15, B is equal to 20, print A, call empty function. Clear? जहां पर भी हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, इन दैट केस द नेक्स्ट लाइन्स of codes are the part of this function or the body of this function. ये सारा पोर्शन आपका किस में कहलाता है? ये सारे पोर्शंस जो हैं आपके वो लोकल वेरिएबल में काउंट होते हैं. a is equal to 15 न्यू वेरिएबल डिफाइन हुआ, b is equal to 20 न्यू वेरिएबल डिफाइन हुआ, प्रिंट a. a is given 2 times. The first one is here and the second one is here. Print a, केवल a के लिए प्रिंट स्टेटमेंट है. There is no print statement for B. That's why you will not get any output for the variable B. B के लिए तो कोई भी आउटपुट आपका यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन B एक सिंपल वेरिएबल है प्रिंट ए. यहाँ पर बस हमें ये समझना है whether we have to take the value of A is equal to 10 और A is equal to 15. हमें इसी चीज को समझना है कि A की वैल्यू आपका 10 आएगी, 10 आएगी या फिर 15 आएगी इस केस में. तो चेक करते हैं, यहां पर ग्लोबल ए डिफाइन कर दिया गया है. क्लियर? इट मींस द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 15. दिस इज नॉट अ लोकल वेरिएबल. नाउ ड्यू टू द डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल ए बिकम्स अ ग्लोबल वेरिएबल. ये भी आपका फंक्शन कॉल के आउटसाइड है, फंक्शन के बॉडी पार्ट तो है नहीं कि इसको लोकल वेरिएबल हम कंसीडर करें. ये भी आपका ग्लोबल वेरिएबल होगा, but initially a is equal to 10. A global variable will be created. Global environment is created in this case. सबसे पहले a का जो वैल्यू होगा that will be equal to 10. Clear? But due to the declaration of global A, now the A is equal to 15. Now the A will become is equal to 15. As per the rule, the output is equal to 15. Clear? Due to the declaration of this global A, global value A is equal to 15 को pick करेगा and accordingly it will produce the output A is equal to 15. Clear? Now check next example. The example is given in our book. Question is given in our book and we have to predict the output of this code. The question number 4 means next example for A is equal to 1, defining of a function f. A is equal to 10 and print A. Clear? बिल्कुल सेम कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है एंड वी हैव टू प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस कोड.
फिर से अगर हम चेक करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, a इज इक्वल टू 1, डिफाइनिंग द फंक्शन f, नो आर्गुमेंट्स, पैरामीटर्स यहाँ पर एक भी नहीं है, f फंक्शन नेम है, a इज इक्वल टू 10, प्रिंट a। यहाँ पर फिर से वही चीज़ें आती हैं कि हमें ये समझना है यहाँ पर कौन से केस में ग्लोबल इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है और किस केस में लोकल इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पिक द ग्लोबल वैल्यू। यहाँ पर ग्लोबल वैल्यू या ग्लोबल इन्वायरमेंट जो क्रिएट होगा उसकी वजह से जो भी वैल्यू ग्लोबल वेरिएबल में असाइन होगी वही वैल्यू आपका प्रिंट होनी चाहिए। क्लियर? चेक कर लेते हैं। ए जो है वो आउटसाइड द फंक्शन बॉडी है, डिफाइनिंग फंक्शन ए, ये आपका क्या है, पार्ट ऑफ फंक्शन बॉडी। ये फंक्शन बॉडी का पार्ट है जिसकी वजह से हमें ये समझ लेना है कि ये लोकल वेरिएबल होगा और ड्यू टू लोकल वेरिएबल a इज इक्वल टू 10 के प्लेस पर हमारा ये ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा। दिस इज द आउटसाइड द फंक्शन डेफिनेशन, दैट्स व्हाई दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल। और ग्लोबल वेरिएबल के केस में अगर a इज इक्वल टू आपका 10 है, ये लोकल है, तो इसकी वजह से a की वैल्यू आपका क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू 1, और ग्लोबल वेरिएबल ही आपका क्या होगा, प्रिंट a स्टेटमेंट की वजह से प्रिंट होगा। दैट्स व्हाई द आउटपुट विल बी इक्वल टू 1। क्लियर? One more question is given and we have to predict the output of this code. Clear? The code is given, define check. Check is the name of a variable in which two default parameters are there, which is n1 and n2. n1 is equal to 1 and n2 is equal to 2. n1 is equal to n1 plus n2, n2 plus is equal to 1, print n1 comma n2. Define check, check 2 comma 1, check 3. यहाँ पर फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है, इट्स मतलब हमें यह है कि चेक नो पैरामीटर्स पे हमें आउटपुट प्रेडिक्ट करना है, चेक 2,1 पर हमें आउटपुट प्रोड्यूस करना है, चेक करना है क्या आएगा, और चेक 3 पर हमें चेक करना है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑन द आइडियली। क्लियर? सबसे पहले चेक करते हैं, यहां पर तो डिफाइनिंग है n1 इज इक्वल टू n1 प्लस n2, n2 प्लस इज इक्वल टू 1, प्रिंट n1 कॉमा n2। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये समझ लेना है n2 प्लस इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है। n2 प्लस इज इक्वल टू 1 का मतलब है n2 इज इक्वल टू n2 प्लस 1। क्लियर? अब हम आते हैं चेक करने पे। चेक यहाँ पर जो पैरामीटर है, कोई भी पैरामीटर यहाँ पर असाइन नहीं किया गया है, इसका मतलब जो भी डिफॉल्ट वैल्यूज होगी in the definition of function will compute with the default values. And what are the default values? Default values are n1 is equal to 1 for check, ठीक है, no parameter, n1 is equal to 1 and n2 is equal to 2। चेक करते हैं, n1 is equal to n1 plus n2। n1 की वैल्यू क्या है, n1 की वैल्यू है 1, n2 की वैल्यू क्या है आपका 2। तो यहाँ पर n1 इज इक्वल टू n1 प्लस n2 से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 1 प्लस 2, n1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्लियर? n2 इज इक्वल टू n2 प्लस 1, n2 इज इक्वल टू n2 प्लस 1, n2 की वैल्यू क्या है हमारा, n2 इज इक्वल टू 2, n2 इज इक्वल टू n2 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट आउटपुट आपका हो जाएगा यहाँ पर 3,3। अब फिर से हम देखते हैं चेक 2,1 पर हमारा क्या आउटपुट प्रोड्यूस होगा। क्लियर? आउटपुट हमें किस पर चेक करना है, चेक 2,1 पे। Now these are the parameters for check which are 2,1. These parameters will be passed as an argument. यहाँ पर क्या होगा,
n1 के प्लेस पर 2 हो जाएगा और n2 के प्लेस पर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ से जब हम आते हैं तो n1 इज इक्वल टू क्या होगा 2 और n2 इज इक्वल टू 1। फिर से कंप्यूट होगा n1 इज इक्वल टू n1 प्लस n2, n2 इज इक्वल टू n1 इज इक्वल टू 2 एंड n2 इज इक्वल टू 1, n1 इज इक्वल टू n1 प्लस n2। क्लियर? यहाँ पे n1 1 एंड n1 है आपका 2 सॉरी एंड n2 इज इक्वल टू 1, n1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 और n2 इज इक्वल टू n2 प्लस 1। n2 की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1, n2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। प्रिंट n1 कोमा n2 से हमें क्या मिल जाएगा 3 कॉमा 2। क्लियर? अब चेक 3 ओनली पर हमें चेक करना है। केवल आपका सिंगल आर्गुमेंट यहां पर क्या है पास हुआ है, सिंगल वैल्यू यहां पर पास हुई है। ठीक है, सिंगल पैरामीटर है फॉर चेक 3। n1 यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा और n2 जो है वो एज ए डिफ़ॉल्ट जो भी होगा वहाँ पर हमारा वो पिक करेगा। n2 डिफ़ॉल्ट है हमारा, ये कितना है आपका 2 है। क्लियर? अब चेक करना है कि वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर दो पैरामीटर होते तो n1 के प्लेस पर एक आता, एक वैल्यू एक पैरामीटर पास होता और n2 के प्लेस पर एक पैरामीटर। यहाँ पर सिंगल पैरामीटर है तो ये केवल फर्स्ट पैरामीटर को ही एज एन आर्गुमेंट पास होगा, तो ये 3 जो है वो n1 पर आएगा और n1 की डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगी n1 इज इक्वल टू 3, वाइल यहाँ पर n2 के लिए कोई वैल्यू नहीं है तो n2 एज इट इज आ जाएगा और n2 क्या हो जाएगा हमारा 2। तो n1 इज इक्वल टू 3 और n2 इज इक्वल टू 2, यही वैल्यू पास होगी। n1 इज इक्वल टू n1 प्लस n2, n1 इज इक्वल टू n1 प्लस n2 मीन्स 3 प्लस 2, n1 इज इक्वल टू 5। डन? फिर से चेक करते हैं n2 इज इक्वल टू n2 प्लस 1। क्लियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n2? n2 इज 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, n2 इज इक्वल टू 3। तो फिर से चेक 3 पर हमें जो वैल्यू प्रोड्यूस होगी वो क्या प्रोड्यूस होगी आपका 5, 3। दिस इज द कंप्लीट आउटपुट ऑफ दिस कोड। ये आपका कंप्लीट आउटपुट होगा। ठीक है, आई होप you can easily understand and easily predict the output of this kind of codes which are very important for the examination point of view, and you have to practice at home. You will get maximum questions in examination to predict the output of the codes. इस वजह से आपको आउटपुट को ट्रेस करना, प्रेडिक्ट करना आना चाहिए। That's all for the today. Thank you.